عید مبارک آپ سب کی طرف سے. میں آپ کو کہہ دیتی ہوں خیر مبارک, کیونکہ ظاہر ہے اگر میں نے عید مبارک کہنا ہے تو آپ نے بھی تو کہنا ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ خیر مبارک. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی تمام لوگوں کو ڈاکٹر نبیہہ کی طرف سے, کوہ نور ٹیلی ویژن کی اسکرین کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہماری بہت ہی پیاری اور خوبصورت ڈیزائنر نے. اب بہت ہی پیاری وہ اس لیے ہے کہ ہمیشہ عید پہ میرا شو جو ہے وہ شو کو چار چاند لگانے کے لیے میرا ڈریس ڈیزائن کرتی ہیں, اور آج میں نے جو یہ اسٹرابری مزے کا کلر پہنا ہوا ہے, جو کہ سید نور صاحب آج مجھے ٹیگ بھی دے گئے اسٹرابری کا, تو جناب یہ آج اسپیشل ڈریس جو ڈیزائن کیا ہے یہ کیا ہے نرگس نے, اور ان کا برانڈ ہے نینسک, اور ہمیشہ یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ اینکرز کو اسی طرح سے جو ہے وہ پروموٹ کرتی رہتی ہیں, اپنے ڈریسز دیتی رہتی ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم نرگس, عید مبارک. السلام, خیر مبارک آپ کو بھی اور باقی سب کو بھی میری طرف سے بہت عید کی خوشیاں مبارک. آپ خود بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, یہ ڈریس بھی آپ نے خود ہی ڈیزائن کیا ہوگا. obviously. صحیح, زبردست. تو اپنے لیے الگ سے ڈیزائن کرتی ہیں اور اینکرز کے لیے الگ ڈیزائن کرتی ہیں؟ اپنے لیے پرسنلی مجھے تھوڑا سمپل پسند ہے, لائک جینس ٹی شرٹ یا جینس ڈریس شرٹ, بٹ آج عید کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے تھوڑا سا اپنا بھی فارمل رکھا ہے. صحیح. اور جو کلرز ان ہے, اسپیشلی آپ کا جو کلر ہے وہ میرا پرسنلی فیوریٹ کلر ہے, تو میں نے آپ کے لیے بڑے پیار سے یہ بنایا کلر, اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بھی کلر ہے, اور آپ نے اس کو بنایا بھی بہت خوبصورت ہے نا. ایگزیکٹلی, جو بھی آج کل ٹرینڈس میں چل رہی ہیں لانگ لینتھ, ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ. اچھا, مجھے اس میں گرمی نہیں نہ لگ رہی. سب سے بڑی بات کہ اس گرمی کے سیشن میں جو یہ عید آئی ہے, آپ نے اس کو جو یہ اس کا لہنگا ہے, جو اس کی جو یہ میں نے پہنا ہوا ہے, لہنگا ہی کہیں گے نا, آرگینزا میں ہے, آرگینزا میں ہے, اتنا لائٹ ویٹڈ ہے کہ میں نے اس کو ایزی ٹو کیری ہے. پھر یہ جو میں نے شرٹ ویئر کیا ہوا ہے یہ بھی ایزی ٹو کیری ہے, دوپٹہ بہت لائٹ ہے, یہ بھی آرگینزا کا ہے. جی, آرگینزا. اور اس پر آپ نے سارا جو ہے وہ جو ورک کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ امبرائڈری ہے, مشین امبرائڈری ہے. بٹ باقی میں نے لیسز اٹیچ کی ہیں جو آپ کی نیک لائن پر ہیں, اور پھر نیچے لہنگے کے ساتھ فرل ہے, اور آپ کو سوٹ بھی بہت کلر ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور آپ یہ تو ہمارے ناظرین بھی بتائیں گے کہ یہ مجھے کیسا لگ رہا ہے, اور میں نے اس کو صحیح کیری کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ یہ ماڈل زیادہ اچھا کیری کرتی ہیں نا. ہم اینکرز جو ہیں وہ ہمارا ذرا عید پہ ہی تھوڑا سا سیشن ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تیار ہوتے ہیں. کیوں عمران؟ ہم عید پہ زیادہ تیار ہوتے ہیں نا, ڈفرنٹ تیار ہوتے ہیں, باقی روٹین وائز میں تو ہم وہ کیجول چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے آنا ہوتا ہے عید پہ کرتا پاجامہ یا تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے, بالکل بینگلز پہن لی, آپ بالخصوص فیمیل اینکرز ہوتی ہیں, ہم نے صحیح بات ہے, اور یہ ایئر رنگز پہن لی, اور باقی جوڑے شوڑے اور جوڑے بنوا لیے. ورنہ عام روٹین میں اگر میں اپنے شو میں یہ جوڑا بنا کے بیٹھوں تو کچھ ڈفرینٹ ہی لگوں گی کہ ڈاکٹر نبیہہ کو کیا ہو گیا ہے. میرے کیونکہ جو ہے وہ میرا ہیئر کٹ ہے, تو میں بالکل شارٹ میں سمپل بالوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی بیٹھتی ہوں, لیکن آج جو ہے وہ میرے میک اپ آرٹسٹ نے, علی نے کہا کہ نہیں جی, میں نے آج آپ کو سمپل نہیں بیٹھنے دینا, آج آپ جوڑا بنوائیں گی. میں کہا اوکے یار, ڈفرینٹ بھی لگ رہا ہے آپ کا, ڈفرینٹ لگ رہا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ یہ ڈریس نرگس کا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. اسد آپ بتائیں, آپ جو ہے وہ عید پہ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ عید کے لیے اسپیشل کرتا ہوتا ہے یا پھر کوئی جینس ٹی شرٹ میں کام چل جاتا ہے؟ چونکہ تہوار ایسا اور شلوار کرتے پہننا بھی ایسے ہی ہے عید کے حوالے سے. عید کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے جینٹس میں اس ٹائم جو ہے وہ وائٹ کلر اس عید پہ کافی ان ہے, کیونکہ راشد محمود صاحب نے بھی وائٹ کلر پہنا ہوا تھا, سید نور صاحب نے بھی, آپ نے بھی, اسد وائٹ جو ہے وہ ویئر کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کمیز شلوار میں وائٹ کلر اس وقت بہت ان ہے. صحیح. آپ بتائیں ذکی, آپ کتنے کانشیس ہیں ڈریسنگ کے بارے میں؟ اور آپ نے تو آج جب میں نے ذکی کو جو ہے وہ کال کی تو کہنے لگے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, آج میں عید والے دن بھی جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں, تو مجھے ایسے ہی آنا پڑے گا, میں بڑی مشکل سے آ رہا ہوں, میں کرتا نہیں ویئر کر سکتا, حالانکہ میں نے کرتے کا کہا تھا. ایگزیکٹلی, میں یہ آپ جب ان سے بات کر رہی تھی تو میں اس وقت یہی بات کرنے لگا تھا کہ جب آپ نے مجھے کال کی تو کیونکہ سڈن یہ ہوا ہے, تو اس وجہ سے میں نے کہا یار میں تو اس وقت میں سیدھا آفس میں ہوں, اور آفس سے میں کس طرح پہنچوں گا, تو آپ نے کہا تو پھر آنا تو ضروری تھا. تو میں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی اب بتائیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ تو تہوار ایسا ہے کہ اسپیشلٹی ہے اس کی, کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کا اسپیشل اوکیزن آتا ہے, اسپیشل تہوار ہوتا ہے, تو ہم جو مرد حضرات ہیں بیسیکلی وہ جو ہے وہ کرتا شلواری یا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں. عید کا اسپیشل ڈریس ہے. میں تو پھر اپنی وہ جو ایک ہمارا نیوز کا ایک فارمیٹ ہے اس سے نکلتے ہوئے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں, اور ویسے بس ٹائی اتاری ہے, اور یہاں پہ میں نے کہا تھوڑا سا تو کیجول ہو جو. ٹھیک ہے نرگس, آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل ٹرینڈنگ میں کیا ہے؟ آپ کس طرح کے کپڑے اس ٹائم ڈیزائن کیے آپ نے عید پہ؟ لیڈیز نے کیا زیادہ جو ہے ویئر کیا؟ آپ کی کون کون سی کلیکشن جو ہے وہ گئی ہے, اس میں کیا ہے؟
आजकल तो नबीहा मैक्सी ज्यादा ट्रेंड में है. अच्छा. लॉन्ग लेंथ को लोग पर्सनली भी पसंद करते हैं, और बल्कि मेरे पास जो कस्टमाइज ऑर्डर आते हैं वो भी लॉन्ग लेंथ में आते हैं. अच्छा. मतलब लोग डिफरेंट ब्रांड से, इंटरनेट से, कोई इंडिया की एक्ट्रेस के ड्रेसेस होते हैं, कुछ हॉलीवुड के होते हैं, कुछ बॉलीवुड के, वो मुझे पिक्चर सेंड करते हैं कि हमें सेम एज इट इज ड्रेस जो है वो आप कस्टमाइज बना दें. तो उसमें ज्यादातर तो लॉन्ग लेंथ ही है. लाइक जैसे आपने भी वेयर किया, अगर शॉर्ट चोली है, शॉर्ट ब्लाउज है, तो उसके साथ लॉन्ग लेंथ लहंगा है. अगर मैक्सी है, जिस तरह से मैंने वेयर किया, थोड़ा सा फॉर्मल लुक दे दिया फ्रंट पे, तो इस तरह से ज्यादा चल रही है. बट जो कैजुअल में देखें तो उसमें कुछ ट्यूलिप शलवार भी इन है. बहुत मजे की. समर्स में अक्सर ट्रेंड आता है शलवार का, एम्ब्रॉयडर्ड शलवार का, वो भी चल रही हैं. वो भी चल रही हैं. तो कुछ क्यूलेट्स वगैरह कुछ इस तरह के भी डिजाइन चल रहे हैं, या सिर्फ अभी फिलहाल जो है वो इन फ्रॉक्स पे और लॉन्ग पे ही काम चल रहा है? कैजुअल में ज्यादा ट्यूलिप्स चल रही हैं, या शॉर्ट फ्रॉक्स हो गए, या शॉर्ट पैनल शर्ट्स हो गई. अच्छा. वो चल रही है, बट फॉर्मल्स में लॉन्ग लेंथ चल रही है. सही. तो कलर्स कौन से इन है इस ईद पे, कौन कौन से कलर्स पे काम किया? कलर्स सबसे पहले तो ब्लैक, तो आपको पता है वो हमारी आवाम का मोस्ट फेवरेट कलर है. ब्लैक तो होता ही है. एंड देन व्हाइट भी बहुत इन है, जैसे आपने जिक्र किया, व्हाइट जेंट्स में भी है और लेडीज में भी है. व्हाइट तो समर का बेसिक कलर होता है. एंड देन रेड हो गया, पिंक के शेड्स हो गए, पीची हो गए, एंड आइस ब्लू, आइस ग्रीन, आइस ब्लू, वो भी ट्रेंड में है. वो भी ट्रेंड में है. तो आपने मतलब इन सारे कलर्स को इस टाइम जो है वो कैनवस पे उतार दिया और इसके ड्रेसेस बना दिए? बिल्कुल. मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कलर चूज करूं, डिफरेंट कलर चूज करूं. जो अभी मैं सर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ किसी ब्रांड ने नहीं बनाया, अब ये मैं बनाऊंगी. राइट. सही है. तो कुछ जो है जी, अभी क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है, वो भी जाहिर सी बात है, ये डिजाइनिंग वगैरह उनका काम है. हाँ. मेरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपसे. आप सबसे पूछ रही हैं, अब मेरा आपसे है. ओ लो जी, यहाँ पे एंकर जो है वो एंकर का सवाल एंकर के लिए आ गया. क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेल हजरात के लिए ब्लू कलर और फीमेल के लिए पिंक कलर फिक्स कर दिया गया है. क्यों? इसकी मतलब जाहिर सी बात है, लड़कियों के लिए गुलाबी ही क्यों और लड़कों के लिए ब्लू ही क्यों? देखिए, लड़कियां होती ही गुलाबी है ना, फूलों की तरह नाजुक, खूबसूरत. रेड गुलाब किसको अच्छा नहीं लगता? तो आप फूलों में से देखें तो सबसे पहले आपकी नजर जो है वो रेड गुलाब पे जाएगी. और लड़कियों की जो स्किन होती है ना, सॉफ्ट बेबी स्किन होती है, पिंक स्किन होती है ना, तो इसलिए भी उनको पिंक कलर से जो है वो रिलेट कर दिया जाता है. फिर जब जेंट्स हैं उनमें जो है वो मुख्तलिफ टेक्सचर, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं. और फिर जो व्हाइट कलर होता है ना, वो जरा एक बार रॉब रंग मुख्तलिफ टेक्सचर्स होते हैं. अच्छा होते हैं ना स्किन का, कि मतलब आप लोग गोरे होते ही नहीं है. हम क्या करें? नहीं, अब तीन जो बैठे तीनों पर इन्होंने हिट कर दी है. हम क्या करें? ये जो है ना, ये सिंफी इम्तियाज है बेसिकली. अच्छा, ये देखिए आप नेशनल टीवी पे बैठ के वैसे हमेशा कहा जाता है कि लड़कियों के साथ जकी हुनर आम ही गंदमी रंग ही मर्दों के बारे में सुना जाता है ना. अच्छा, व्हाइट कलर में गंदमी रंग व्हाइट कलर के साथ जो है ना वो बड़ा जबरदस्त जब वो सेट हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए व्हाइट है. ब्लू कलर ज्यादातर जो है मेल के साथ जो है वो अटैच किया जाता है. ब्लू कलर कभी कमीज सलवार में अच्छा नहीं लगता मेल्स को, सॉरी. नहीं, लेकिन व्हाइट पजामा के साथ अच्छा लगता है. हाँ, वो कभी कभी किसी को सूट करता है, माजरत के साथ. ये सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे. हाँ, ब्लू शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लाइनिंग्स में ब्लू शर्ट बहुत जबरदस्त, लाइक डेनिम की आप वेयर कर रहे हैं. बहुत से लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहन लेनी है. ने कह दिया, आप लोग पहनेंगे. पहले तो आप दोनों पहने ना. आप हमें गिफ्ट करेंगी तो हम जरूर पहनेंगे. देखें जरा, गिफ्ट करेंगी. हमारी ब्लू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इंसिस्ट कर रही हैं, आप इम्पोज करेंगे ब्लू. ब्लू सूट जो है ना 2 पीस में, वो तो पहना होता है ईद पे. लेकिन आप शर्ट की बात करें तो वो आप कर देंगे. देखिए आपने, अच्छा ये जो आपने नग पहना हुआ है, का इजहार है, ये जो आपने नग पहना हुआ है, ये क्या फिरोजा है? फिरोजा. तो ये आप इस पर बिलीव करते हैं, ये इसका इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पे? फैक्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पहना हुआ अच्छा लगता है. पहना हुआ अच्छा लगता है. मैंने भी फिरोजा पहना हुआ है. आपने भी फिरोजा पहना? ये ईरान से बेसिकली, ये मुझे सऊदी अरेबिया से आया था. अच्छा. और ये मेरे भाई, छोटा भाई है फुरकान ताहिर. अच्छा. ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ. जबरदस्त. और ये मेरा जो है वो स्पेशल ईरान से आया. मेरा छोटा भाई है, और थैंक यू बोलना चाहूँ. थैंक यू फुरकान. अरे जबरदस्त, क्या बात है. ईद के मौके पे जो है उन्होंने अपने छोटे भाई का थैंक्स भी कह दिया है. इतना अच्छा. एंकर्स के लिए एक खास मैं आपको बात बताऊं, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जेमस्टोन्स बहुत पहनती हूँ. मेरी जेमस्टोन की ज्वेलरी बहुत ज्यादा है. मेरी बहुत बड़े बड़े जो है वो जेमस्टोन्स की रिंग्स हैं, जो मैं बहुत अक्सर वेयर करती हूँ, प्रोग्राम्स में भी वेयर करती हूँ. मेरी स्पेशलिटी है. ये एंकर्स का होता है, कुछ हम लोगों को पसंद है कि कुछ क्योंकि हम सादे बहुत होते हैं, हम उसमें हमारी ड्रेसिंग बहुत सिंपल होती है, इस वजह से कुछ ऐसा ऐड करना पड़ता है बीच में कि जो थोड़ा सा कलरफुल हो. बिल्कुल. और फिर मेरा एक और चीज है जो आपने कहा ना कि इसके असरात
असरात के हवाले से तो खैर नहीं, लेकिन कुरान पाक में इनका बाकायदा तौर पर तज़किरा है, और ये वो है पत्थर जो जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर कलमा पड़ा था, कहा जाता है ना, ठीक है। तो ये इनका पड़ा, ऑफ कोर्स। आप क्या कहते हैं सद, आप तो खुद सिंगर है और बहुत सारे सिंगर्स को मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान हूँ इन दोनों ने पहना हुआ है, क्योंकि ये बड़ा जलाली पत्थर है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैयदजादों से हमारी मुलाकात रहती है, और हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, कसीदे पढ़ते हैं, तो हमारी महफिल सूफी रहती है। सही। तो मैंने इसको पहना था, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा, आपको सूट नहीं किया। हाँ, सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर ये सूट करना ना करना, ये चीज है, ये है बिल्कुल। फरोजा जो है ये बड़ा हार्ड है, और ये मेरे जो जहाँ तक मैंने सुना है ये मेरे मौला ने पहना है, मौला इमाम अली ने। बेशक बेशक बेशक। और इसकी बड़ी अफादियत है, और इसको बड़े 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 एहतमाम के साथ पहनना पड़ता है। इसके पूरे लवाज़मात पूरे करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात, ईद का मौका है, ईद के माहौल है, ईद के मामलात है, जहाँ हम ईद की बात कर रहे हैं, वहाँ हम सब एक फैमिली हैं जो आज आपके लिए जो है ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। और खास तौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको जिस तरीके से ये लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए है, हम ईद पर जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके साथ हैं, अच्छे कपड़े पहन के, अगर आपको ये पसंद है आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। ईद के हवाले से किसी को मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो भी आप, कोहिनूर की वेबसाइट भी है, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हैं, डॉक्टर नबीहा अली खान, आप जहां भी सोशल मीडिया पे लिखेंगे वहीं पर आपको जो है वो मेरा सेटअप मिल जाएगा। आप टिकटॉक पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप जहां पे भी जाएं वहां जाके आप कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने कमेंट्स भी करें, बताएं भी हमें कि ईद कैसे मना रहे हैं। साथ ही हम असद से कहेंगे कि असद, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे सॉन्ग ना सुने, क्योंकि नरगिस भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, जिन्होंने जाना है, इनकी न्यूज़ है, इन्होंने जो है वो बड़ा काम करना है भी जाके, इमरान ने भी और जकी ने भी। गाना तो होगा, लेकिन गाना है धमाल वाला। धमाल वाला, हाँ जी। तो ये धमाल तब होगी जब ये सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे। अरे डन हो गया, भंगड़ा होगा तो फिर मजा होगा। ठीक हो गया। तो ये फाइनल हम लास्ट जो है वो इस तरह जरा हफ्ते खेलते हुए निकलेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। नरगिस, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जरूर, ईद का मौका है तो जरूर हल्ला गुल्ला तो होना चाहिए, होना चाहिए। ईद के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगी अपनी, कोई ड्रेसिंग के हवाले से, कोई अपने ब्रांड के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? ड्रेसिंग के हवाले से तो यही कि अप्रिशिएट कर रहे हैं सब, अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करना चाहिए सब डिजाइनर्स को ही। और ईद के हवाले से ये कि आप जितना अपना ख्याल रखते हैं उतना दूसरों का भी ख्याल रखें। हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज। इमरान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद पे? ईद का मौका है और मुल्क में पेंडेमिक की सूरत हाल है, तो मेरा यही पैगाम है बिलखुसूस लोगों के लिए, कौम के लिए, कि SOPs को ज़रूर फॉलो करें, जो NCOC जो हिदायत जारी करे उसे ज़रूर फॉलो करें। और अभी रिसेंटली जो है डेल्टा वेरिएंट जो है पाकिस्तान पहुंच चुका है, और लाहौर में भी उसकी तस्दीक हो चुकी है। सो जितना आप लोग केयर करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, ये आपके लिए ही बेहतर है, इसमें आपकी भलाई है। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 4 लोगों के साथ ही ट्रांसमिशन की, वरना ईद की ट्रांसमिशनों में इतना हल्ला गुल्ला हुआ करता था आज से 2 साल पहले कि बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे होते थे, बहुत ज्यादा हम जो है वो इकट्ठे होकर सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर जो है वो काम करते थे। लेकिन इस वक्त में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर सामने रखना है। आप असद क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि ये तो इंजेक्ट करवाएं सब लोग, ये जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाएं, और ये इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल सही। और कोई ऐसा इसमें अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, हर जगह पर हर बंदे को इसको फॉलो करना चाहिए, और ये हमारे आने वाले वक्त के लिए बड़ा मुफीद है। बिल्कुल सही है। ईद के वाले से आप ज़की क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नबीहा यही कहूँगा कि ईद का मौका है तो हमें आए मिलकर सब कुर्बान करते हैं नफरत को, ज़िबा करते हैं नफरत को, क्योंकि वैसे तो हम कुर्बानी तो कर ही रहे हैं उन तमाम तर मामलात जो कि हमारे बीच में दरार डाल रहे हैं, हमारे रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, हमें हमारे दरमियान नफरत का बीज बो रहे हैं। आए उसको ज़िबा करते हैं और खुशियां बांटते हैं, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सो खुशियां बांटे, और इस मौका के ऊपर उन तमाम लोगों को याद रखें जो कि आप समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि खुद से जो कुछ आपके पास है वो नहीं हासिल कर सकते, तो उनको भी जरा शरीक कर लेंगे तो ये खुशी मजीद दोबाला हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का कि आप मेरे साथ इस ईद ट्रांसमिशन में जो है वो शरीक रहे। अभी मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी इस मोहब्बत, इस प्यार के साथ कि ईद मनाना जरूरी है, ये फर्ज है, ये वो इबादत है बड़ी ईद और बकरा ईद, खास तौर पे ईद उल अज़हा, कि जिसमें हमने खुशियों को तो बांटना ही है, लेकिन हमें ख्याल रखना है उन लोगों का जो मुस्तहिक हैं, जिनके लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं।
कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि आपने बहुत खूबसूरत बैल ले लिया, गाय ले ली, बकरा ले लिया और लोगों को दिखाया और शोबाजी की कि मैंने जो है वो इतनी महंगी चीज ली और मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। कुर्बानी वो है जिसमें आप किसी सफेद पोश को ढूंढ के खामोशी के साथ उसके घर गोश्त पहुंचाएं और उसे ये एहसास दिलाए बगैर पहुंचाएं कि आपने उस पर कोई एहसान किया है। क्योंकि आज के दौर में जितनी शोबाजी हो गई है, जितना हमने अपनी कुर्बानियों को जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की बजाय हमने अपनी ख्वाहिशों को जो है वो कुर्बान करना शुरू कर दिया है और हम ये कुर्बानी जो है इसको ईद कुर्मा समझ के जो है वो इस ईद को मनाया जाए। क्योंकि ये ईद जो है वो मिल बैठने का नाम है, खाने बनाएं, पकवान बनाएं, अपने मोहल्ले वालों को, अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों को इसमें शरीक करें। हम क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, साथ वाले के घर कुछ बना है नहीं बना हमें इस टाइम जो है वो इन सब चीजों का पता नहीं होता। जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई हमें पता होता है कि कहाँ कुर्बानी नहीं हुई, वहां जरूर गोश्त पहुंचाएं, ढूंढ के पहुंचाएं, गरीबों का हिस्सा अलग करें, यतीमों का हिस्सा अलग करें, अपने रिश्तेदारों का हिस्सा अलग करें और इसी तरह आप भरपूर तरीके से ईद मना सकते हैं। ईद का मकसद ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, तैयार होकर बैठ गए। ईद का मकसद ये है कि फरीजा अंजाम दें, वो फर्ज जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर लागू किया है, बताया है, हमें समझाया है। और हजरत इब्राहिम की वो कुर्बानी हमें याद करनी चाहिए, जो पहली कुर्बानी। फिर जो है वो यहाँ पर हम याद करते हैं वो कुर्बानी कि जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जो है वो इस्माइल की कुर्बानी दिए जाने लगी और फिर अल्लाह ने जो है वो उसके लिए हमें इस कुर्बानी का जो है वो ये गिफ्ट दे दिया कि हम बकरे कुर्बान कर सकते हैं, गाय कुर्बान कर सकते हैं, ऊंट कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि आप अपने फ्रीजर भर लें, इसलिए कि आप ये बांट दें जैसे खुशियां बांटते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईद की खुशियों में अपनों को याद रखिए और साथ ही डॉक्टर नबीहा अली खान को अभी के लिए इजाजत दीजिए। फिर इंशाल्लाह ईद के तीनों दिन मैं आपके साथ रहूंगी। यहाँ पर महफिल इसी तरह सजती रहेगी, गेस्ट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ईद की ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ इसी तरह जगमगाते रहेंगे। सबके साथ हम परफॉर्मेंस देखेंगे असद अली की और मेरी तरफ से और मेरे गेस्ट की तरफ से अल्लाह निगहबान। दिहाड़े चन्ना चार वे उमरां दा नहीं हो एतबार वे दगाना देवी दिलदार वे उमरां दा नहीं हो एतबार वे उमरां दा नहीं हो एतबार
ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਐਤਬਾਰ ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਾੜੇ ਚੰਨਾ ਚਾਰ ਵੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਐਤਬਾਰ ਵੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਐਤਬਾਰ